Fantastic. With this, we're going to open the session for Q&A. So we have mics. May I kindly request you to please put your hands up so we can hand over the mics to you for the questions. Yes. Hi, Kangana. Kangana, hi. Here, Seema here. Hi. You recently launched your production house. So, what do you have in mind? Like, what kind of films? And do you have any certain actors you would like to work with? What is your planning like? Well, there are so many good actors. यहीं पे इतने सारे हैं. But my first film called Ayodhya, for that, like we have a specific cast in mind. I don't think it'll be appropriate कि उनको बताने से पहले मैं यहाँ बता दूँ. So definitely you guys will get to know about that. And the kind of films as an individual, I think I would want to make the as an actor, I'm doing so well, and for me to step back and to do direction. And I will not be a factory producer. I will only be involved in my films as a producer, because I feel just being a director, sometimes you don't have the creative liberty, the kind of liberty, and that's the reason why I'm getting into production, but I'm sure I'll partner with other people as well. So the idea is to make landmark films of our times, and to not to get carried away with the pressure of wanting to just make film after film, or remakes, or just what the playing to the gallery. That's not what I want to do. So precisely what goes on in my mind and what I think as an individual, I mean, barring from few interviews, nobody really knows that, I am like an actor for hire. So just people come to me and they hire me and I go to the set and just do pretty much what I'm asked to do. I can have a depiction, but nothing more than that. But as a creative mind, I think I'm an original thinker, like I am an independent thinker, and nobody knows my mind yet. So I would want to just put that out there and have a lot more involvement than I already do. Thank you. हेलो मैम, आई एम फ्रॉम जी न्यूज़ वहीदा. मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आप अपनी बातें बहुत बेबकी से रखती हैं, चाहे वो सैफ हो या फिर दीपिका हो. आप पंगा लेने से कभी डरती नहीं हैं? इस पे आपका क्या कहना है? अच्छा, so is that a statement or a question? A question. नहीं, मुझे तो नहीं लगता मैंने कोई इसमें पंगा लिया है. To say things as you see them, उसमें कोई पंगा नहीं है. And I think high time that we stop calling people and their expressions outrageous, or stop to see it that way. So I have not said anything which is out of the line. That's why pure, like I said, my own perception of the situation, and there's nothing outrageous about it. So I think every time a girl expresses herself, there is a lot of reactions from their surroundings. I think we've just got to take that easy here. आपने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला है, उसके लिए पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस. आगे आपका क्या प्लान है इसके? I just replied to that. Seema ji, can you give her the video? गगना, आपने बहुत सारे सुपरस्टार के साथ आपने फिल्में की हैं अपने करियर में. सुपरस्टार्स के साथ आपने फिल्में की हैं यहाँ पर सुमन. तो अपने अभी हाल ही में अपना प्रोडक्शन हाउस खोला है, तो कभी आपके दिमाग में ऐसा रहा होगा कि मैं इस सुपरस्टार के साथ मैं फिल्म करूँगी, इसको तो मैं अपने इशारों पे नचाऊँगी, इसको मैं कट टेक स्टार्ट बस, तो ये सारी चीज़ें मैं शुरू करूँगी, तो कुछ दिमाग में रहा है कभी भी आपके? I think that's not the idea of being, the captain of a ship, or being the person in charge or responsible for a crew. Yes, an actor is very vulnerable. When we are very vulnerable on the sets, and pretty much people sometimes take that for granted, and they would want to have that desire, and that's precisely what I don't want to do, and don't want to be that person जो कि कट फट ये नाचो उंगलियों पे नचा and all that. That's not a good culture, and that happens a lot to young women, especially the ones who are who are outsiders. I condemn this culture, and a leader should be the most
approachable and the most humble and the most disarming person on the sets. अच्छा, आमिर खान के साथ आपके अच्छे रिश्ते रहे, आपके अच्छे दोस्त हैं, और जाहिर सी बात है आप उनसे किसी न किसी राय पर आप उनसे सलाह मशवरा ले रही होंगी, तो कहीं ना कहीं इस प्रोडक्शन हाउस के साथ उनका भी खुद का एक प्रोडक्शन हाउस है, तो आगे जाकर क्या उनके साथ कोई फिल्म करना चाहेंगी या उनके प्रोडक्शन के तहत कुछ ऐसा कुछ प्लान है कंगना का? Yeah, definitely. We do discuss. I discussed few ideas with Amir sir, and it will be I'm sure in future we are going to collaborate at some point. आई थिंक पंगा अगर कोई प्रोडक्टिव चीज़ के लिए ले रहे हैं, जैसे मैं आजकल काफ़ी ये कह रही हूँ कि देश में काफ़ी दंगे हो रहे हैं, मगर दंगे नहीं करने चाहिए, पंगे लेने चाहिए, मगर देश हित में लेने चाहिए, जो देश के हित में हो, जो समाज के हित में हो, उसके लिए पंगे लेने चाहिए, और उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसके लिए आप जितना भी जाओ उस लिमिट से पार भी हो जाओ तो चलेगा, मगर वो जनहित में होना चाहिए, सबकी वेलबींग के लिए होना चाहिए, सिर्फ आपकी वेलबींग के लिए नहीं। जी, मैंने एक गाना गाया है इसमें, और शंकर एहसान लॉय का म्यूज़िक है, और जावेद सर के गाने लिखे हुए हैं सारे, और जो मैंने गाया है वो मैंने एक रिप्राइज वर्जन गाई है गाने की। ये एक्स्ट्रा एक गाना गाया है जिसका म्यूज़िक गौरव एंड कार्तिक ने किया है, बट कंपोजिशन एंड लिरिक्स जावेद सर के हैं और कंपोजिशन शंकर सर की है। और बाकी 5 गाने जिसके बारे में ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं मैम। हाँ जी, मेरा गाना एक है इसमें सर। जी, मेरे लिए अभी तक पैरेलल चलती आ रही हैं दोनों चीज़ें। अगर एक्टिंग की बात की जाए तो जितनी भी फिल्में मैंने आज तक की हैं वो मेरे गानों से मुझे ऑफ़र हुई हैं। जो मेरी पहली पंजाबी फ़िल्म थी वो भी मेरे गाने के बाद मुझे ऑफ़र हुई थी, और जो मेरी पहली बॉलीवुड फ़िल्म थी इससे पहले हैप्पी फिर भाग जाएगी, वो भी मेरा गाना देख के गाने का वीडियो देख के मुझे वो फिल्म आई थी। और यही बोल सकता हूँ कि मेरे दोनों पैरेलल चल रही हैं, और मेरी सिंगिंग की वजह से ही मुझे इन एक्टिंग करने का मौका मिल रहा है। सो मेरे लिए दोनों अच्छी हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मैं अमित अमर उजाला से सभी कलाकारों से जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि इस फिल्म का किस तरह का असर समाज पर पड़ेगा, किस तरह का रिएक्शंस देखने को मिलेगा, मतलब वो जो आपके दिमाग में है और किस तरह का रिएक्शंस आ सकता है, उसके बारे में प्लीज़ बताइए। मैं अभी बताने की स्थिति में नहीं हूँ, मैंने पिक्चर देखी नहीं। सो आई थिंक अश्विनी कैन आंसर दिस बेटर। या मुझे ऐसा लगता है कि पंगा 7 इयर्स से लेके 70 इयर्स तक सबके लिए है, और हर एज ग्रुप, हर मैन वुमेन, हस्बैंड, सन, ये सबके लिए है, क्योंकि माँ सबके ज़िंदगी में होती है, और हम सब ने कभी ना कभी अपने माँ के साथ ऐसा कुछ किया रहेगा जो हम रियलाइज़ भी नहीं करते हैं। और एक रियलाइजेशन आता है जब आप थोड़ा पीछे हटते हो और देखते हो कि उनको भी उतनी इम्पोर्टेंस चाहिए जितना वो हमको इम्पोर्टेंस देती है। सो ये सबके लिए है। No, this is Sandeep from Hindustan Times. Kangna, you're the best actress as far as the industry is concerned. I personally feel that this amount of adulation and the adoration that you receive for the work you do and the way you do it, to a certain extent, kind of backfires on the personal front. For instance, जैसे जस्सी ने कई दफ़े इंटरव्यूज़ में बोला है कि बहुत जनों ने I mean, while he was giving interviews to various portals, बहुत जनों ने उनसे पूछा कि कंगना के साथ आप क्यों काम कर रहे हैं, because she'll be very dominant and she'll not be able to, you'll not be able to cope up with and all of that. But later on, he refuted all of those things straight away. So to a certain extent, do you feel that these statements that are made against you, they kind of affect you? I mean, do they affect you personally and mentally, for that matter? आई थिंक डेफिनेटली व्हेन जब आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, और मुझे लगता है जो आप खुद होते हैं वो आप दुनिया को उस तरीके से देखते हैं, उस नज़रिए से देखते हैं। आपका नज़रिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू योर ओन पर्सनैलिटी।
तभी तो शीशे में जो आप देखते हैं वो खुद ही को देख सकते हैं ना, तो जब भी वर्ल्ड लाइट मुझ पे गिरे तभी तो रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में जा रही है, यू नो. सो आई थिंक हम जो खुद होते हैं हम दुनिया को वैसे देखते हैं. तो मुझे सभी बहुत विश्वसनीय लगते हैं सबसे ज़्यादा. तो पहले तो मैं सबकी बातों का विश्वास करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मुझे वो सब समझ ही नहीं आता कि बोलना कुछ, करना कुछ, देखना यहाँ, जाना वहाँ, वो सब मतलब एक अलग साइंस है, मुझे नहीं समझ आती. और कभी कभी जब ये एक बहुत ही हार्श रियलाइजेशन होती है कि दुनिया मुझे कैसे देख रही है या क्या कर रही है, तो इट कम्स लाइक अ बिग स्लैप ऑन योर फेस, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम तो आप से खुद को दुनिया एक्सपीरियंस कर रहे हैं, राइट. आप दुनिया की नज़रों से दुनिया एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपनी ही आंखों से देख सकते हैं. सो कभी कभी बहुत शॉकिंग लगता है कि ये क्या था, मतलब वाओ, इतना कोई किसी के प्रति इतना ज़्यादा प्रेजुडिस कैसे कोई रख सकता है. तो कई बार बहुत ज़्यादा चिंता भी होती है इस बात की कि ये क्या है और किस तरह से ये मेरा वो बना के रखा हुआ है इमेज. तो एक मुझे याद है, कोई एयरपोर्ट पे जो रिसीविंग स्टाफ होते हैं, तो वो लोग अपना एक्सपीरियंस सब एक्टर्स के साथ में बता रहे थे. तो जर्नलिस्ट उनसे अलग अलग क्वेश्चन कर रहे थे, तो मतलब ये कैसे हैं, ये कैसे हैं, ये कैसे हैं. तो जब मेरे बारी आई तो उन्होंने कहा कंगना कैसी है, क्या वो साइको है. तो आपको लगा कि यू नो व्हाट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन इज दैट. सो ऑफ कोर्स उस टाइम पे आपको लगा कि दैट्स सो अनफेयर कि किसी को ऐसे एड्रेस करना या किसी के बारे में इतना एक्सट्रीम विचार रखना, ये थोड़ा कम हुआ है अभी तो लोगों को यही लगता है कि मैं साइको हूँ या अग्रेसिव हूँ. मगर जब मैं नई आई थी, जब आप बाहर से आते हैं तो उनको लगता है कि मतलब शायद आप माँ बाप से नहीं जन्मे हैं, किसी पेड़ से टपके हैं. यू नो, जिस तरह से आपके बारे में बातें होती हैं, जिस तरह से आपको परसीव किया जाता है, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट, बिजार, completely bizarre. Like when my sister gave birth to her child, she sent me few pictures and she's like, I want to post them. I said, you're in the hospital bed and they've cut you open. Why do you want to post it? She's like, because tomorrow they will say that this is not your child. She's like, looking at the media, I'm 100% sure they will say, ek to he is so white and like you, they will say, ye isne yahan transfer kar diya. So I'm like, oh, you think so zigzag, but very likely to happen. क्योंकि वो एक तो कर्ली बाल एंड इतना पेल, सो शी इज लाइक ये तो मेरा बच्चा लग नहीं रहा, एंड मोर लाइकली पीपल विल से इसका ही होगा, इसने इसको दे दिया. सो लाइक दैट वी आर कॉन्स्टेंटली लिविंग इन अ सर्टन फियर कि यू नो कौन कहाँ से हमें क्या बोल देगा. वही अगेन लाइक दे सी मी थ्रू फेजेस जहाँ पे मेरे घर में काले पर्दे हैं, काली दीवारें हैं, उसमें काला जादू होता है. Like that was the time my sister opened the doors and she's like, I want magazines to cover your house. Because what, you know, like I'm not a person who will bring magazines into my house, you know, like she's like, no, now I will tweet everything, everywhere you go, what you eat. Because how can you go on every platform and be like, you know, be so defensive? Life becomes so difficult. Does that happen to anybody who's from the film industry? It does not. So it's a very scary thing how outsiders are perceived and what all she's constantly on Twitter. You must have seen that 2 years ago she didn't have time for all that. But she's so protective also because of the bizarre things people talk about outsiders. We feel that, everybody sitting over here knows it for a fact. That you are perhaps, as far as acting is concerned, there is barely anyone who can beat you at that. So, given the fact that it is a fact. Now, given this fact, to a certain extent, do you feel that it is, to a certain extent, very necessary for you to get justified in front of, in front of the media, in front of everyone for that matter, the other actors in the Bollywood industry? Is it very necessary for you to be, is the rest of my life, if I'm wrong, if I'm right, nobody should call me wrong. Or I know it for myself that I'm right. Is it necessary for you to kind of have the justification for that? Well, to be honest, I think your work is a reflection of your inner world. I do feel that all the love that I have is maybe no matter how media perceives me or film industry treats me, but I'm so loved by people. Essentially, that's what matters. But my family feels that it's very harsh. Sometimes the news gets very harsh, so they feel the need of wanting to post things and pictures, and even when I'm in my personal space.
she's always posting my pictures, and I'm like, what is this? I don't feel the need, but my family feels that it's important. Hi Richa. हाय ही ऑलरेडी सर की हाल है साढ़ा ठीक मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि हमने एक नया स्पोर्ट सीखा और उसके लिए काफ़ी ट्रेनिंग की और मुझे मन था अश्विनी मैम के साथ काम करने का। उन्होंने बहुत कम अरसे में अपना एक स्टाइल इस्टेब्लिश किया है जो कि बहुत रिस्पेक्टेड है और उसके अलावा इस वक्त स्टेज पे जितने लोग बैठे हैं मैं उनकी बतौर आर्टिस्ट बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, तो मुझे लगा इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ना चाहिए। और हालांकि इसमें लीड कंगना है और काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि वो ऑलरेडी हैं लीड में तो तुम यूँ क्यों कर रही हो, मुझे लगा ये कैरेक्टर इंटरेस्टिंग है। थैंक यू। हाय दीपक या फ्रॉम फिल्मी फेम। मेरा सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टीम पंगा, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप ये टीम देख के लग रहा है कि फिल्म पंगा लेगी बाकी फिल्मों से। मेरा सवाल कंगना जी आपसे है इस आपके किरदार के बारे में कि सबसे पहले तो आपने इसमें एक माँ का किरदार किया है, आई थिंक आप दूसरी बार एक माँ का किरदार ना फिल्म में प्ले कर रही हैं, और जो खेल कबड्डी है जो एक ज़माने में वैनिश हो चुका था जो वापस आ रहे हैं, तो क्या इंटरेस्टिंग पार्ट था आपको इस कैरेक्टर को चुनने के लिए? आई थिंक एक तो मदर होती हैं, यंग मदर, और आजकल जो कंटेम्प्रेरी कपल्स हैं उनकी लाइफ कितनी डिफरेंट है पहले की लाइफ से, और ख़ासकर जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, जॉइंट फैमिलीज़ में मदर्स को और भी ज़्यादा सपोर्ट होती थी, अब उतना भी सपोर्ट नहीं रहा। तो आई पर्सनली फील दैट इट्स वेरी क्लोज टू अश्विनी मैम, उनकी ये लाइफ का बहुत ही निजी एक एक्सपीरियंस है, मगर मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव रहा कि एक बच्चे के साथ, और आजकल के बच्चे बहुत डिफरेंट हैं। अश्विनी मैम मेल्स भेजती हैं उनको व्हाट्सएप पे, उनके पूरे स्कूल के फंक्शन प्लान करती है, उनके कॉस्ट्यूम्स, उनके स्कूल जो भी होते हैं, और उनके ग्रुप्स हैं उनके साथ में। बच्चे इतना कल बता रहे थे कि उनको अमेज़ॉन पे शॉपिंग करते हैं अपनी गेम्स की, ये सब। हम लोगों का बचपन ऐसा नहीं था, और आजकल के बच्चे इतना मतलब 8 साल की उम्र में वो एक कंप्लीट ह्यूमन बन गए होते हैं ना, उनकी जो डेवलपमेंट है पूरी मेंटल इमोशनल, एक अलग एक्सपीरियंस था। जब मैंने इनके फैमिली को देखा, आई वाज टेकन अबैक, बट दैट वर्ल्ड इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल फॉर मी टू बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड टू नो अबाउट। हेलो, दिस नीना गुप्ता हियर। आप काफ़ी समय से बॉलीवुड इंडस्ट्री में हैं, तो अब जाकर आपको बहुत अच्छे रोल मिल रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? भगवान को पहले सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगी कि मेरा टाइम आ गया है, देर से आ गया है ना। फिर मैं सोचूं, किसी ने मेरे को लिख के दिया था, मैं जो सोच रही थी मैं डालूँगी इंस्टाग्राम में। मैं आजकल बहुत इंस्टाग्राम की वो हो गई हूँ, नशा आ गया है कि मेरा टाइम आ गया है, मेरा टाइम आ गया है। फिर मैं सोचूं मेरा टाइम मुझे छोड़ के गया ही कब था, फिर मैं सोचूं मेरा टाइम मुझे छोड़ के गया ही कब था, मैं ही लंबी छुट्टी पे थी, काम पे ध्यान दिया ही कब था। पंगा, ये पंगा है, ये पंगा है। सो इट्स वेरी नाइस, जो मुझे अभी काम मिल रहा है, बहुत खुश हूँ। कंगना जी, आपसे पूछना है, इस फिल्म का टैगलाइन जो सपने देखते हैं वो पंगा लेते हैं, इसके बारे में आप कुछ ये तो मेरी ज़िंदगी की फ़िलॉसफ़ी है। देखिए, आपको, मुझे लगता है आपको कुछ भी ज़िंदगी में जो बहुमूल्य है वो आपको ऐसे खाली पीली में नहीं मिलता है, क्योंकि वो किसी और के पोजेशन में होता है, राइट। हर एक वैल्यूबल चीज़ सबको चाहिए होती है, चाहे वो कोई पोजीशन हो या चाहे कुछ भी हो वो दुनिया में। तो आई थिंक हर चीज़ के लिए आपको फाइट करना पड़ता है, बट आई ऑल्सो फील दैट यू शुड चूज़ योर बैटल्स, should not be a petty fighter. Some things you should let go, and you should have only 2 to 3 goals in your life कि this I want to do, and so I think as long as you know कि this fight is worth it. जैसे मैं मेरे गुरु का कल मैं कोई वीडियो देख रही थी सदगुरु जी का, और वो वैसे बात कर रहे थे कि आप जब अपने डेथ बेड पे हो तो जो भी आपने अपनी फ़ाइट की हो लाइफ में, विल इट बी रेलिवेंट, हमेशा ये सोचें। मतलब कई लोग तो ऐसे हैं जो उनको 18 साल में उनके जो ड्रीम थे, जो वो फाइट कर रहे थे, आज वो खुश नसीब हैं कि वो पूरा नहीं हुआ।
एंड दैट इज़ ऑल्सो ट्रू कि सो मैनी टाइम्स वी हैव थिंग्स इन लाइफ जो वी लुक बैक बोले थैंक गॉड वो नहीं हुआ, यू नो. सो नहीं तो यू वुड हैव बीन लाइक ऑल द लव स्टोरीज आई वांटेड टू हैपन, यू नो, द पीपल आई वांटेड टू मैरी, मतलब बच गए. तो द फाइट शुड बी वर्थ इट. वो पंगा नहीं लेना है, फिर उसको छोड़ दो, अगर वो छूट गया तो छोड़ दो, आगे बढ़ो, यू नो. सो आई फील a fight should be worth it, and it should be also have, it should also withstand the test of time. थोड़ा सा I think one should have that clarity. अश्विनी जी, मेरा सवाल आपसे है, जहाँ तक Members, I'm so sorry for interrupting. Last 2 questions. Please continue. जहाँ तक देसी जड़ों का सवाल है, तो हमारे देश में आज मल्टीप्लेक्स में भी इस तरह की फिल्में अच्छी लगती हैं लोगों को, कामयाब हो रही हैं. लेकिन जहाँ तक खेलों का सवाल है, देसी खेलों का सवाल है, तो हॉकी के ऊपर इतनी फिल्में बनी, लेकिन अब तक हॉकी को वो स्थान नहीं मिला जो क्रिकेट को मिला है. तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो आपकी फिल्म है वो कबड्डी को एक अच्छा मुकाम दिलाएगी? थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन मैम. हमने कबड्डी इसके लिए चुना क्योंकि हमको ऐसा लगा कि वुमेंस कबड्डी हम सब ने एक टाइम पे तो खेला है, हम सब ने मेंस कबड्डी वुमेंस कबड्डी तो खेला है, पर हमारी जनरेशन को ये गेम के बारे में कुछ पता ही नहीं है. हमारी जनरेशन को ये पता है कि फुटबॉल क्या होता है, क्रिकेट क्या होता है, वॉलीबॉल क्या होता है, बास्केटबॉल क्या होता है, पर उनको अगर कबड्डी बोलेंगे तो उनको पता ही नहीं है, हॉकी भी उनको पता नहीं था. तो मुझे ये फिल्म इसके लिए भी बनानी थी क्योंकि मुझे यंगर जनरेशन को बोलना था कि दिस इज़ आवर ओल्डेस्ट गेम इन द कंट्री एंड दिस नीड्स टू बी सीन. अभी इसका क्या फ़ायदा होगा, हमने जिस तरह से लिखी है ये कोई रियल लाइफ पे बेस्ड नहीं है, ये कोई ऑटोबायोग्राफी नहीं है जैसे स्पोर्ट्स फिल्में होती हैं. हमने बहुत सारे चीज़ें ऐसी लिखी है फिल्म में जहाँ पे हम सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए. तो वो एक बहुत बड़ी बात है कि ऑलमोस्ट लाइक हमने एक प्लानिंग दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, और अगर वो हर स्कूल में, हर जैसे जिम्नास्टिक्स अभी थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, वैसे अगर हर हमारा जो गेम्स है वो बड़ा हो जाए, एटलीस्ट फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम स्कूल लेवल, तो अच्छा होगा. नीना जी, मेरा सवाल एक आपसे है. आपने अपनी ज़िंदगी, उसके जो मायने, उनकी जो चीज़ें हैं वो खुद तय की हैं, और फाइनेंशियली हो या कुछ भी हो, आप हमेशा इंडिपेंडेंट रही हैं. लेकिन इस फिल्म में जो आपका कैरेक्टर है, और ख़ास तौर पे अपनी बेटी के प्रति, क्या वो उस सकारात्मक सोच है उसको आगे ले जाता है, या फिर वो थोड़ी सी दकियानूसी है कि शादी हो गई है तो उसको घर पे रहना चाहिए, लड्डू बनाने चाहिए नॉल? नहीं, मैं भी लड्डू बनाती हूँ, पर मैं मॉडर्न भी कहलाती हूँ. सो आई थिंक जो कैरेक्टर ये है, जो कैरेक्टर इस फिल्म में मेरा है, वो उससे सब माएँ आइडेंटिफाई करेंगी. जैसे जब मैंने देखा है, जो बाहर हिंदुस्तान से बाहर जो लड़कियों की शादी होती है, तो जब बच्चा होता है तो माँ को बुलाती हैं. वो बेचारी माएँ 4-4, 6-6 महीने रहती हैं, ना उनको इंग्लिश आती है, ना उनको ड्राइविंग आती है, बस वो नौकरानी जैसे घर में काम करती रहती हैं. कुछ कभी बाहर ले गई बेटी तो गई, या दामाद. और वो हमेशा कहती है अब तेरा अगला होगा तो मैं नहीं आऊँगी, हमेशा कहती है, पर अगला होता है तो फिर जाती है. So my character is the same like all of us women. Whether आज मैं माँ हूँ या मेरे से यंगर माँ है, या जो कंगना ने प्ले किया है वो भी कल को अपने बच्चे के साथ वैसी ही होगी. So it is a very universal मदर, मतलब मदर इंडिया है. मुझे सिर्फ ऐड करना है इसमें कि हम ऐसे मुकाम पे पहुँचे हैं जहाँ पे वी आर अ प्रोग्रेसिव कंट्री, क्योंकि द न्यू एज इंडिया इज़ द मिडिल क्लास इंडिया, जहाँ पे उन्होंने सब कुछ देखा हुआ है. पर हम प्रोग्रेशन और रिग्रेशन के बीच में हैं, जहाँ पे हम थोड़े कंफ्यूज्ड हैं अभी कि हमको प्रोग्रेस करना है, पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम थोड़े से रिग्रेसिव हो जाते हैं वहाँ पर, क्योंकि पेट्रियार्कल सोसाइटी है, थोड़े से नॉर्म्स है, थोड़े से सोशल सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे एक पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा होगा थोड़ी चीज़ों पे. सो दैट्स द डिफरेंस. This is the last question. Hi Gangna. My question is for you is that बहुत बार आपको ऐसा लगता है कि आपका जो स्टेटमेंट होता है उसको मिस इंटरप्रिटेट किया जाता है. इस बार सैफ अली खान का जो स्टेटमेंट है, आपको ऐसा लगता है उससे भी मिस इंटरप्रिटेट किया गया? हाँ, मैं हेडलाइन पढ़ी हुआ, लैश्ड आउट. पता नहीं और क्या खरी खोटी सुना दी. सो आई डोंट थिंक लाइक आई सेड, अगर उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया तो मैंने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा.
तो ऐसा कुछ खरी खोटी सुनाया, ये सब आई थिंक कुछ सेंसेशनल बहुत ज़्यादा हो जाती है मीडिया, बट कहीं ना कहीं हमारे देश के जो रीडर्स हैं उनका टेस्ट भी कुछ ऐसा ही है, फिर क्या करें. सो दैट गोज़, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मीडिया का ही, उस पर क्लिक्स इतने आते हैं, इतने पॉपुलर हो जाते हैं. अगर कंगना लैश्ड आउट तो वो पूरा जो साइकोटिक बिहेवियर है वो सब वो सब पूरा जस्टिफाई हो जाता है. तो वो है. बाकी आई जस्ट फील दैट अगर आप मुझसे कुछ सवाल पूछते हैं और आप ये अपेक्षा रखते हैं कि जवाब ना दे तो बेटर है, तो वैसा तो फिर आप मुझसे पूछिए ही मत. क्योंकि जैसे मुझे कहा, मैंने कहा जाना इधर, देखना उधर, बोलना कुछ, करना कुछ. आई एम नॉट दैट पर्सन. आपने पूछा तो मैं बताऊंगी. Thank you so much, members of the media, for. रीचा, काफ़ी बार ऐसा भी कहा गया है कि कंगना की को स्टार्स के साथ नहीं जमती है. अब जब आपने कंगना के साथ काम कर लिया है, इस स्टेटमेंट को किस तरीके से देखती हैं? आई थिंक ये एक वो होता है इंडस्ट्री का पुराना, ये मतलब गौरवशाली परंपरा है कि जब दो एक्ट्रेसेस साथ में काम करती हैं तो कैट फाइट, इसकी शर्ट मेरी शर्ट से सफ़ेद कैसे, ऐसी न्यूज़ आइटम्स आती हैं. पर मैं ये भी कहूँगी कि ज़रूरी नहीं कि आपके हर प्रोजेक्ट पे बहुत अच्छे दोस्त बने, बट यू आर ऑलवेज सिविल इनफ, कॉर्डियल इनफ टू वर्क विद पीपल एंड मूव ऑन एंड हैव अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस. तो मैं यही कहना चाहूँगी. कंगना, Thank you so much, members of the. कंगना, आपने हर उस पॉलिटिकल या सोशल इशू पे बात रखी है बेबाक ढंग से, जो एक आम आदमी से सरोकार रखती है. आपने जेएनयू पे बात की, सीए पे बात की. हाल ही में निर्भया. फिर भी मेरा स्टूडियो कहता है मीडिया से बात करो. मैंने कहा सारी तो मैंने बात कर ली. और क्या मतलब, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसका मैंने आंसर नहीं दिया हुआ है. हाल ही में निर्भया पे जो ये रह गया था. अच्छा, ओके, बताइए. जो वर्डिक्ट आया उस पर आप क्या कहना चाहती हैं, और ये क्या आपको लगता है कि इस तरीके से जो कोर्ट की तरफ से वर्डिक्ट आ रहे हैं उससे रेप कम होंगे, या फिर जो आम मानसिकता है लोगों की विमेन के प्रति वो कम होगी? दो जो भी, एक तो वो माइनर था, उसको माइनर कहते हैं. जो रेप करता है, जो कि रेप करने के काबिल है, वो कौन से उससे माइनर बनता है? वो कौन सा स्टैंडर्ड इन लोगों ने बनाया हुआ है जो उसको माइनर बता रहे हैं? जो बंदा रिप्रोड्यूस कर पा रहा है, रेप कर पा रहा है और इस तरह की हरकतें कर पा रहा है, तो सबसे पहले वो माइनर है ही नहीं. ऊपर से ऐसे लोगों को चौराहे पे मारना चाहिए, उनको वहाँ पे हैंग करना चाहिए, ताकि सबको पता चले कि क्या होता है रेप और क्या उसकी सज़ा होती है. और ये कोई इतने सालों बाद वो माँ भी इतनी सफ़र कर रही हैं, उनके पिताजी इतने सफ़र कर रहे हैं, पूरी फैमिली की क्या हालत होगी, उनका अभी क्या बचा होगा इतने सालों में उनका संघर्ष कर करके. कहाँ जाएंगे वो गरीब लोग, पैसे हाई कोर्ट से सुप्रीम कहाँ जाएंगे वो? मतलब ये कैसा समाज है? तो मुझे तो नहीं लगता कि इन लोगों को ऐसे चुपचाप मार देना चाहिए. तो ऐसे मारने का क्या फ़ायदा जब आप एग्जाम्पल ही सेट ना कर पाए? उन लोगों को चौराहे पे हैंग करना चाहिए, चौराहे पे मारना चाहिए सबके सामने. Members of the media, thank you so much for the questions. We are now going to request the star cast for the photo opportunity. Let's see the film now. We are all very anxious. हमारा आज शो है और आप लोग भी शायद कल फिल्म देख रहे हैं. Kangana, at the same time, there are certain. I mean, there is a lady in the country who is saying that just like Priyanka Gandhi, even Nirbhaya's mother should forgive. उस लेडी को उन लड़कों के साथ 4 दिन जेल में रखो. उनको रखना चाहिए, उसको जरूरत है. कैसी ऐसी औरतें होती हैं जिनको बड़ी दया आती है, और ऐसी ही औरतों की कोख से ऐसे निकलते हैं दैशी दरिंदे. ये भी किसी की कोख से निकले हैं. उन्हीं की कोख ऐसी होती है जो ऐसा सोचती है, जिनको सिंपैथी आती है, प्यार आता है इन पे, दैशियों पे, खूनियों पे. Members of the media, thank you for the questions. We are now requesting all of you to join us for the photo session.